محترم ناظرین آداب، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں، وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے۔ آغاز کرنے سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ پی اے سی اجلاس سے بی آر ایس و ایم آئی ایم نے کیا واک آؤٹ۔ اسمبلی کتنے دنوں تک انعقاد عمل میں لانے کے تعلق سے کسی بھی قسم کا فیصلہ نہیں لینے کا سابق وزیر ایم ایل اے ہریش راؤ نے کیا اظہار۔ ریاست بھر میں سابقہ سرپنچوں کی زندگی حزیرن بن گئی ہے۔ سابقہ سرپنچوں و ایم پی ٹی سی زیڈ پی ٹی سی اراکین کے زیر التوا بلوں کو فی الفور اجرائی عمل میں لانے کا اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ضلع کاماریڈی ایم ایل اے کاٹی پلی وینکٹا رمنا ریڈی نے کیا مطالبہ۔ دوسرے دن بھی منصوبہ بندی کے تحت گروپ 2 امتحانات کا کیا گیا انعقاد۔ مختلف امتحانی مراکز کا اعلیٰ عہدیداروں نے تنفی عمل میں لائی۔ کانگریس حکومت اقتدار پر فائز ہو کر 1 سال مکمل ہونے کے باوجود بھی ایک بھی گروکولا کا قیام عمل میں نہ لانا مانع خیز ہونے کا تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں ایم ایل سی کویتا نے کیا اظہار۔ پرجا وانی کے تحت موصول ہونے والی درخواستوں کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے ذمہ دار عہدیداروں کو دی ہدایت۔ سائبر کرائم سے متعلقہ مسائل کے حل میں نظام آباد قومی لوک عدالت کی خدمات قابل ستائش۔ ضلع نظام آباد کو 5واں مقام حاصل ہونے کا انچارج سی پی سندھو شرما نے کیا اظہار۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نظام آباد میں ایس ٹی پی فنڈ سے غیر معیاری کاموں کو انجام دہی کی شکایتوں کی جانچ کی جائے۔ متعلقہ اے ای گتےدار کے خلاف کارروائی کرنے مجلس نظام آباد کے قائدین کی ایسی پنچایت راج سے نمائندگی۔ مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد کے قائدین نے سپرنٹینڈنٹ انجینئر بی بھاسکر سے تحریری نمائندگی کے ذریعے ریاستی حکومت کی جانب سے نظام آباد اربن حلقے میں ترقیاتی و تعمیری کاموں کو انجام دینے منظورہ 10 کروڑ خصوصی ترقیاتی فنڈز ایس ٹی پی سے معیاری کاموں کو انجام دینے اور باقاعدہ کاموں کی نگرانی کے ذریعے عوامی فنڈز کے بے جا استعمال پر روک لگانے کا مطالبہ کیا۔ صدر ٹاؤن مجلس محمد شکیل احمد فاضل، صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، معتمد ٹاؤن مجلس و معاون رکن محمد شہباز احمد، مجلسی کارپوریٹر ماجد صدیقی، نمائندہ کارپوریٹرز مجلس محمد ریاض احمد، عبدالسلیم، سید رفیع الدین، محمد مستحسین کے علاوہ ارشد پاشا، شیخ خلیل احمد، عمر فاروق پر مشتمل وفد نے 10 لاکھ روپیے ایس ٹی پی فنڈ سے ڈویژن نمبر 56 احمد پورہ کالونی میں غیر معیاری کاموں کی انجام دہی پر مشتمل خبروں کی اشاعت پر ایسی پنچایت راج سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی اور تحریری یادداشت پیش کی، جس میں بتایا کہ ڈویژن نمبر 56 احمد پورہ میں 10 لاکھ روپیے سے منظورہ سی سی سڑک کی تعمیر سے متعلقہ اے ای کی ناقص کارکردگی سے کاموں کے معیار پر سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ مقامی عوام سڑک کی تعمیر میں ڈسٹ پاؤڈر کے استعمال اور سیمنٹ کم ملانے پر ناراض ہے۔ مذکورہ کاموں کی جانچ کرنے، کاموں کی انجام دہی کے موقع پر متعلقہ اے ای کی عدم موجودگی، گتےدار کی جانب سے منمانی طریقے پر کام انجام دینے کی شکایت کی۔ علاوہ ازیں ان ترقیاتی کاموں کی جانچ، متعلقہ اے ای گتےدار کی ملی بھگت سے غیر معیاری کام انجام دیے جانے پر کارروائی کا مطالبہ کیا اور ڈویژن نمبر 30 اور 31 میں انجام دیے گئے غیر معیاری کاموں کے بلوں کو روک دیا جائے۔ بعد ازاں محمد شکیل احمد فاضل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایس ڈی پی فنڈ سے معیاری ترقیاتی کاموں کی جلد تکمیل کے لیے پنچایت راج ایس سی سے نمائندگی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین گزشتہ 10 سالوں سے کارپوریشن میں نمائندگی کے ذریعے شہر بالخصوص اقلیتی علاقوں میں معیاری ترقیاتی کاموں کو انجام دیا ہے۔ آج شہر کے ہر گلی کوچے میں سی سی سڑکوں، بی ٹی سڑکوں کا جال سا بنا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومتی خصوصی فنڈ سے معیاری کام انجام دیے جائے اور عوامی فنڈز کا بے جا استعمال نہ ہو۔ کاموں کی متعلقہ محکمے کے عہدیدار معیار کی جانچ کی۔ اس موقع پر ڈپٹی ای ای پنچایت راج اشوک دوسرے موجود تھے۔ آج نظام آباد ایم آئی ایم یونٹ سپرنٹینڈنٹ پی آر سے ملاقات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایس ڈی ایف فنڈ جو ہے
जो निज़ामाबाद अर्बन के लिए जो अलाट किया गया उसके कामों के ताल्लुक से जितना जल्दी हो सकते वो काम कराइए। और साथ ही साथ हम ये चीज़ पे भी फिक्रमंद है क्योंकि MIM पार्टी गुज़िश्ता 10 साल से निज़ामाबाद अर्बन में खुसूसन माइनॉरिटी इलाकों में डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ की। अगर उसको बोलना शुरू करें तो बहुत टाइम लगता है। वक्तन फ़क्तन हम आगे आके हमारे अपने डेवलपमेंट भी बताएंगे और डेवलपमेंट भी ऐसा किए, क्वालिटी डेवलपमेंट किए जो आप तमाम के सामने नज़र आ रहा है। आज निज़ामाबाद माइनॉरिटी एरिया में खुसूसन जहाँ पर BT रोड का तस्वुर नहीं होता था, हम BT रोड का जाल बिछा दिए, कई सड़क CC रोड का जाल बिछाए, बड़े बड़े ड्रेन्स वगैरह बहुत सारे ऐसे काम हुए। हम चाहते हैं कि ये जो फंड आया ये फंड का भी काम क्वालिटी हो और अच्छा हो, जिसकी वजह से क्योंकि ये खुसूसी फंड डेवलपमेंट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूंसी के वास्ते दिया गया है, इसलिए गवर्नमेंट का भी काम है कि वो ये जो फंड का बेजा इस्तेमाल ना हो उस पर नज़र रखें। उस पर नज़र रखने के लिए डिपार्टमेंट के डिप्टी AE जो भी है वो लोग जिम्मेदार होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब अखबारों में हम देखा तो ये अखबारात में ये शिकायत दर्ज हुई कि काम क्वालिटी नहीं चल रहा। हम क्वालिटी के काम अगर जो नहीं कर रहा उसको बर्दाश्त नहीं करते, क्वालिटी काम होना ज़रूरी है। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की कामयाब नुमाइंदगी पर गवर्नमेंट मधु मलंचा हाई स्कूल बोधन में गवर्नमेंट उर्दू टीचर का तकर्रुर। हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना के हुक्म पर और हाफिज पीर खालिक अहमद साबिर साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना के मशवरे से हजरत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब खासमी सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद ने अपने एक वफद के हमरा चंद माह कबल कलेक्टर निजामाबाद से मधु मलंचा हाई स्कूल बोधन में गवर्नमेंट उर्दू टीचर के तकर्रुर की नुमाइंदगी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मधु मलंचा गवर्नमेंट हाई स्कूल बोधन में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO के हुक्म पर बतारीख 3 दिसंबर 2024 उर्दू टीचर का तकर्रुर अमल में लाया गया है। इस मौके पर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के कारकुनान MEO बोधन DEO निजामाबाद मोहतरम जनाब कलेक्टर साहब मोहतरम जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब मुशीर हुकूमत तेलंगाना का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह जिन लोगों ने मुसलसल कोशिश की जनाब मिर्जा अफजल बेग साहब स्टेट टीचर एसोसिएशन, मोहम्मद सलीम साहब बोधन, अब्दुल वाहिद साहब बोधन, जनाब मीर नजीर अली साहब काउंसलर, जुनैद अहमद खलील साहब बोधन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन तमाम अहबाब की कोशिशों से उर्दू टीचर का तकर्रुर अमल में आया है। इस मौके पर हम हुकूमत तेलंगाना को तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि उर्दू के मसाइल को फौरी तौर पर हल करे। इस मौके पर हाफिज अफसर साहब बोधन, हाफिज खलीलुद्दीन इंजीनियर बोधन, मौलाना अब्दुल नासिर साहब, मुफ्ती जुबैर साहब, हाफिज नसीमुल्लाह साहब, हाफिज इब्राहिम अशाती, हाफिज अब्दुल वली साहब मजहरी, हाफिज अरशद साहब, हाफिज अब्दुल मुजीब साहब, मुंतजिम दफ्तर जमीयतुल उलमा, अब्दुल्ला साहब इंजीनियर व दीगर अरकान जमीयत मौजूद थे। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से हजरत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना के हुक्म पर और इसी तरह जनाब हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना और आंध्रा के मशवरों से मधु मलंचा गवर्नमेंट हाई स्कूल बोधन में एक उर्दू टीचर के तकर्रुर का मसला था। वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होने के बावजूद उर्दू का उस्ताद मौजूद नहीं था, तो जमीयतुल उलमा ने सदर साहब के हुक्म पर कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की और इस तरफ तवज्जो दिलाई कि वहाँ पर उर्दू टीचर का तकर्रुर अमल में लाया जाए। पढ़ने वाले तलबा की ज़्यादातर तादाद उर्दू पढ़ने वालों की है। बहुत कोशिशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है उर्दू उस्ताद उर्दू टीचर का तकर्रुर अमल में आया जमीयतुल उलमा की नुमाइंदगी पर। इस मौके पर हम MEO बोधन नागैया साहब, DO निजामाबाद जनाब अशोक कुमार रेड्डी साहब, इसी तरह कलेक्टर साहब जनाब ताहिर बिन हमदान साहब चेयरमैन उर्दू एकेडमी, जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब एडवाइज़र हुकूमत तेलंगाना, इसी तरह जनाब महेश कुमार गौड़ साहब PCC तेलंगाना का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन अहबाब ने इस सिलसिले में मुसलसल मेहनत की जनाब मिर्ज़ा अफजल साहब स्टेट एसोसिएशन टीचर्स एसोसिएशन, इसी तरह मोहम्मद सलीम साहब बोधन और जनाब अब्दुल वाहिद साहब बोधन, जुनैद अहमद खलील साहब, इन अहबाब की भी मुसलसल कोशिश रही और इन कोशिशों के बाद आज जमीयतुल उलमा की नुमाइंदगी पर कोशिशों से ये तकर्रुर अमल में आया है। हम इन अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं, हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करते हैं। और जो है इस सिलसिले में बच्चों का तालीमी एक साल मुतासिर हुआ, तो हम हुकूमत तेलंगाना से अपील करते हैं कि उर्दू के मसाइल पर
पूरी रियासत में जहाँ जहाँ भी उर्दू के तालीमी मसाइल हैं, उर्दू के असातिज़ा के मसाइल हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत है हुकूमत इस तरफ खास तवज्जो दे। पिछली हुकूमत ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अब इस मौजूदा हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं कि इस तरफ तवज्जो दे ताकि वो तलबा जो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं उनका नुकसान ना। सालूरा मंडल के हुंसा देहात में अवामी नुमाइंदों ने NREGS स्कीम के तहत 5 लाख रुपये के मुआरिफ से शुरू किए गए ग्रेवल रोड से मुतल्लिका अराजी पर रखा संगे बुनियाद। सालूरा मंडल के मुकाम पर वाक़ हुंसा देहात में अवामी नुमाइंदों के हाथों NREGS स्कीम के तहत 5 लाख रुपये के मुआरिफ से शुरू किए गए ग्रेवल रोड से मुतल्लिका अराजी पर संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने मुखातिब करते हुए किसानों की सहूलियात के लिए NREGS स्कीम के तहत 5 लाख रुपये मालियत से दही रोड की मंजूरी अमल में लाए जाने के बाद साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद इंतखाबात के मौके पर अवाम व किसान की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए दिए गए वादे को मरहलेवार तरीके से रूबे अमल में लाते हुए हर एक अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिकीन को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और अवाम व किसानों से मुतल्लिका मसाइल को हल करने के लिए फंड्स की फिलफोर मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेजी के साथ शुरू करते हुए पाए तकमील पर पहुँचाया जा रहा है। और इसके अलावा मंडल से मुतल्लिका मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को होने वाली परेशानी दूर करने के लिए दरकार अखराजात की फिलफोर मंजूरी अमल में लाते हुए तामीराती कामों को तेजी के साथ पाए तकमील पर पहुंचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बोधन AMC चेयरमैन A संध्या दामोदर, मुत्तहिदा बोधन एंड सालूरा मंडल सदर नागेश्वर राव, M रवि, ब्लॉक कांग्रेस सदर Y नरेंद्र रेड्डी, AMC चेयरमैन S शंकर, सालूरा सोसाइटी चेयरमैन A जनार्दन के अलावा दीगर ने शिरकत की। గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా పెద్దలు రైతు బాంధవులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి, ఎందుకంటే తనకి రైతులు అంటేనే ముందుగానే మొదటి నుంచి ఎనలేని ప్రేమ కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే మొట్టమొదటి ప్రయారిటీగా మరి తన యొక్క బోధన్ నియోజకవర్గంలోనే మొట్టమొదటిగా ఎలాంటి ఫండ్ వచ్చినా కానీ ముందు రైతులకే ప్రయారిటీ ఇచ్చే విధంగా ఉపాధి హామీ పథకంలో దాదాపు మన బోధన్ నియోజకవర్గంలోనే దాదాపుగా అన్ని గ్రామాలకు మొట్టమొదటిగా ఏదైతే ప్రధాన रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद KCR के दौरे हुकूमत में 275 BC स्कूलों के अलावा 31 BC डिग्री कॉलेजों का क़याम अमल में लाने का MLC के कविता ने किया इज़हार। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वक्फा सवालात के दौरान BRS MLC के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद KCR के दौरे हुकूमत में 275 BC गुरुकुला स्कूलों का क़याम अमल में लाते हुए 31 डिग्री BC कॉलेजों का क़याम अमल में लाया गया और एग्रीकल्चर BC कॉलेजों का क़याम अमल में लाते हुए 14,000 करोड़ रुपये फीस रिमेम्बर्समेंट की इशराई अमल में लाई गई, जिसके तहत 15 लाख तुलबा को फायदा होने का इजहार किया। और इसके अलावा 2230 BC तुलबा की बैरूनी ममालिक की तालीम के लिए 450 करोड़ रुपये खर्च करने का इजहार किया। అధ్యక్ష, స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేంత వరకు అధ్యక్ష మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో అగ్రభాగాన కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలన ఉన్నప్పటికీ కేవలం 19 BC రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల్ని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అట్లానే కేసీఆర్ గారి హయాంలో జరిగినటువంటి 10 సంవత్సరాలలో 275 BC పాఠశాలల్ని మరి మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే డిగ్రీ కళాశాలల అధ్యక్ష గురుకుల రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కళాశాలలు కూడా అంతకుముందు ఎన్నడూ లేవు అధ్యక్ష తెలంగాణ ఏర్పాటు కన్నా ముందు. ఇప్పుడు తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత 31 BC డిగ్రీ కళాశాలను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुतल्लिका शिकायतों को फिलफोर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा प्रजावाणी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए 94 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंगान जो के जिले के मुख्तलिफ इलाकों से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने इनसे मुतल्लिका दरख्वास्तों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा कलेक्टर किरण कुमार, DRDO सायागौड़, इंचार्ज DPO श्रीनिवास को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे। वो शिकायत कुनिंगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट पर अपलोड करने के ताल्लुक से अहदेदारों को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। रंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ साटापुर देहात के सरपंच विकार पाशा ने बेहतरीन कौमी अवार्ड हासिल किया।
रंजल मंडल के मराकज पर वाक़ साटापुर देहात के सरपंच विखार पाशा ने 2024 बेहतरीन कौमी अवार्ड हासिल किया, जो कि मुल्क के सदर मुकाम न्यू दिल्ली में आंध्रा एसोसिएशन ऑडिटोरियम में मुनक़िदा बहुजना साहित्य अकेडमी के 17वां नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुजना साहित्य अकेडमी कौमी सदर एन राधा कृष्णा, कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर यू सुब्रमण्यम के हाथों विखार पाशा ने कौमी अवार्ड हासिल किया। इस मौके पर एन राधा कृष्णा ने खिताब करते हुए कहा कि SC, ST, BC और माइनॉरिटी के अदब को फरोग देने के लिए बहुजना साहित्य अकेडमी की जानिब से हर साल अवामी जहदकारों व संगम के खिदमत गुजार शौरा और मुसन्निफ के अलावा रजाकाराना तंजीमों को अवार्ड हवाले करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इंडिया में 27 रियासतों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 1000 अफराद डेलीगेटेड इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का इजहार किया और इस अवार्ड को हवाले करने वालों में दिल्ली रियासती सदर मानवीर सिंह के अलावा तेलंगाना सदर M गौतम व दीगर ने शिरकत की। जिला सतह के खिलाड़ी रियासती सतह के मुकाबलेजात में हिस्सा लेते हुए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने का कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने मुकामी इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में चीफ मिनिस्टर्स कप 2024 जिला सतह के मुकाबलेजात का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए इजलास में कलेक्टर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर्स कप 2024 के मौके पर जिले में दही मंडल सतह में खेलों के मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसका आज से इस माह की 21 तारीख तक जिला सतह के मुकाबलेजात मुनक़िद किए जाएंगे। इस इवेंट्स में 323 खिलाड़ी जिला सतह में हिस्सा लेंगे। CM कप 2024 खेलों में 8000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 2000 खिलाड़ियों को मुंतखब करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि खेलों में हार जीत लगी रहती है, इसलिए हार से मायूस न होकर कामयाबी हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश करते हुए कामयाबी हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में RDO रंगानाथ राव, वार्ड काउंसलर विनीता राम मोहन, जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन सदर जयपाल रेड्डी, फिजिकल डायरेक्टर व दीगर ने शिरकत की। स्पोर्ट्स యాక్టివిటీస్ కాంపిటీషన్స్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకొని ఈ కాంపిటీషన్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు జయపాల్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు, లైక్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్తో పాటు ఇప్పుడు నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా తెలంగాణ నుంచి ప్లేయర్స్ పార్టిసిపేట్ చేయాలి, విన్ చేయాలి కాంపిటీషన్స్. దానికోసం కాంపిటీషన్స్ చేసి బెస్ట్ టాలెంట్ని సెలెక్ట్ प्रजावाणी से मुतल्लिक़ा मसाइल को हल करने की जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। जिला कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए प्रजावाणी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले शिकायत कुनिंदगान ने इनसे मुतल्लिक़ा शिकायतों को कलेक्टर के अलावा दीगर अहदेदारान को हवाले किया, जिसमें अराजी से मुतल्लिक़ा मसाइल, इंदिराम्मा मकानात की मंजूरी के अलावा आंगनवाड़ी भवन व मुख्तलिफ मसाइल पर मबनी दरख्वास्तें हवाले की गई। ताहम कलेक्टर आशीष संगवान ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए कहा कि प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाली शिकायतों को बारीक बीनी से जायजा लेते हुए फिलफोर हल करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारों को अहकामात जारी किए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर V विक्टर श्रीनिवास रेड्डी, RDO रंगानाथ राव, ZP CEO चंदर, मुख्तलिफ महकमे जांच से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत। साइबर क्राइम से मुतल्लिक़ा मुकदमात को कौमी लोक अदालत के तहत फिलफोर हल करने से रियासती सतह में जिला निजामाबाद को 5वां मुकाम हासिल होने का इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा ने किया इजहार। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में साइबर क्राइम मुकदमात गुज़िश्ता कुछ सालों से हल न होने के बायस कोर्ट व बैंक में ज़ेरे इल्तवा है। इस तरह के 174 केसेस में कुल 71,52,505 रुपये की अदायगी अमल में लाने के लिए 14 तारीख को इनेकाद अमल में लाए गए कौमी लोक अदालत में हल करने के लिए इक़दाम किए गए। वो मुख्तलिफ बैंकों में जमा किए गए रकूमात को कौमी लोक अदालत के तहत शिकायत कुनिंदगान को इनकी रकूमात अदायगी अमल में लाने के लिए मकतूब जारी किया गया। 25,000 से ज्यादा नुकसान होने वाले 131 मुकदमात में 67,221 रुपये और 25,000 से कम नुकसान होने वाले 43 केसों में 45,52,284 रुपये और इसके अलावा कोर्ट में फाइल करने वाले कुल 174 केसेस में 71,52,505 रुपये जिला निजामाबाद भर में शिकायत कुनिंदगान को पुलिस की जानिब से की गई कोशिश के बदौलत मुख्तलिफ बैंकों में होल्ड होने वाले मुतासरीन को रकूमात की अदायगी के लिए किसी भी तरह की रुकावट न होने के लिए कार्रवाई करते हुए कौमी लोक अदालत के तहत मुख्तलिफ किस्म के साइबर क्राइम में धोखा खाने वाले मुतासरीन से मुतल्लिक़ा मसाइल को हल किया गया, जिससे रियासती सतह में जिला निजामाबाद को साइबर क्राइम से मुतल्लिक़ा मुकदमात को फिलफोर हल करने से 5वां मुकाम हासिल हुआ। रियासत भर में साबिक़ा सरपंचों के अफराद खानदान की जिंदगी अजीरन बन गई है। असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान जिला कामारेड्डी MLA काटीपल्ली वेंकट रमना रेड्डी ने किया इजहार।
असेंबली में वक्फा सवालात के दौरान जिला कामारेड्डी एमएलए काटीपल्ली वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि साबिका सरपंचों एमपीटीसी व जेडपीटीसी अराकीन के जेर इल्तवा बिल की इजराई अमल में लाने का मुतालबा किया और कहा कि कामारेड्डी में तकरीबन 7 करोड़ बिल जेर इल्तवा होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कामों को करवाने के बाद बरवक्त बिलों की अदम दस्तियाबी पर इक़दाम खुदकशी करने की सूरत हाल आन पड़ी है, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए बिलों की इजराई अमल में लाने की ख्वाहिश की। సర్పంచ్ల కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో సుమారు 7 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటి వరకు డ్యూగా ఉన్నాయి. గత 2-3 సంవత్సరాలుగా పాత ప్రభుత్వమా కొత్త ప్రభుత్వమా అనేది కాకుండా సర్పంచులతోని పనులు చేపించి మన ఊరు మనబడి అని చెప్పి వైకుంఠ ధామం అని చెప్పి లేకపోతే ట్రాక్టర్ అనుకోండి ఇంకోటి అనుకోండి అందరూ చెప్పినట్టు అవన్నీ పనులు ఏదైతే చేపించారో సుమారు సీసీ డ్రైన్స్ సీసీ రోడ్స్ అన్నీ వేయమని చెప్పేసేసి ప్రొసీడింగ్లు ఇచ్చారు, మాత్రం శాంక్షన్లు ఇచ్చారు. సరే పల్లెలు శుభ్రంగా ఉన్నాయా, పల్లెలు निजामाबाद जिले में ग्रुप 2 इम्तिहानी मराकज का एडिशनल पुलिस कमिश्नर एडमिन बसवा रेड्डी ने लिया जायजा। इस माह की 16 तारीख को सुबह ठीक 10 बजे से आगाज होने वाले ग्रुप 2 तीसरा सेशन इम्तिहान के पेश नजर निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सीएस सिंधु शर्मा के अहकामात के मुताबिक एडिशनल पुलिस कमिश्नर एडमिन बसवा रेड्डी की जेर क़यादत मुख्तलिफ कॉलेजों के पास क़याम अमल में लाए गए इम्तिहानी मराकज का जायजा लेते हुए वहाँ पर खिदमात अंजाम देने वाले अमले को मुख्तलिफ तजावीज़ दी। 63 इम्तिहानी मराकज पर इम्तिहानात पुरअमन तौर पर जारी रहने का इन्होंने इजहार किया और इम्तिहानी मराकज के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में 163 BNSS 144 सेक्शन नाफिज करते हुए सख्त सयानती इंतजामात किया गया है। रंजल मंडल के बोरगाम में गोदाम की तामीर के लिए मुत्तहिदा जिला कोऑपरेटिव बैंक सदर के रमेश रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। रंजल मंडल के बोरगाम देहात में वाक़ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन के ज़ेर एहतमाम 250 मैट्रिक टन गोदाम की तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मुत्तहिदा जिले के कोऑपरेटिव बैंक जिला सदर के रमेश रेड्डी के अलावा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर कोऑपरेटिव बैंक जिला सदर ने कहा कि किसानों को सहूलियात के लिए 250 मैट्रिक टन गोदाम की तामीर अमल में लाई गई है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने का सहरा कांग्रेस हुकूमत को जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस मंडल सदर मुबीन खान, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी मंडल सदर मोइनुद्दीन, मंडल कांग्रेस कायदीन धनुंजय, रवि, MC राजू के अलावा दीगर ने शिरकत। రెంజల్ సొసైటీలో పరిధి భాగంగా బోర్గాంలో 200 మెట్రిక్ టన్నుల గోడాం ఈరోజు గౌరవ శాసనసభ్యులు సూర్యరెడ్డి గారి ఆదేశాల ప్రకారం గోడాంకు పూజ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ గోడాంను కూడా త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని చైర్మన్ గారు చెప్తా ఉన్నారు. త్వరలో పూర్తి అయితే ఇక్కడ లోకల్ బోరిగాం రైతులకు అందరికీ ఫర్టిలైజర్ సమస్య తగ్గుతుంది. వారికి మొట్టమొదలు ఈ చైర్మన్ మోబిన్ పాషా గారికి రైతుల పక్షాన మా డీసీ పక్షాన కూడా ఈ చొరవ తీసుకొని గోడాం ప్రారంభం చేస్తున్నందుకు వారికి మా యొక్క శుభాకాంక్షలు। तेलंगाना असेंबली चैम्बर में BAC इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। असेंबली कितने दिनों तक इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया। असेंबली का कितने दिन तक इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से वाकिफ न करवाने के बाद TRS कायदीन हरीश राव, प्रशांत रेड्डी के अलावा MIM कायद अकबरुद्दीन अवैसी ने इजलास से वॉकआउट किया। वो असेंबली कम अज कम 15 दिनों तक मुनक़िद करवाने की ख्वाहिश की, जिस पर हुकूमत की जानिब से सिर्फ 3 या 4 दिनों तक मुनक़िद करने के ताल्लुक से बताया गया, जिससे इन्होंने हाल ही में टी-शर्ट पहन कर आने से की गई रुकावट पर एतराज किया। लोकसभा अपोजिशन कायद राहुल गांधी टी-शर्ट पहनकर पार्लियामेंट नहीं जा रहे क्या के ताल्लुक से हरीश राव ने सवाल किया और कहा कि BAC के बगैर ही बिल को पेश करना रिवायत के खिलाफ कहते हुए तनकीद की। 696 కోట్ల రూపాయల బిల్లులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయని చెప్పారు। రాష్ట్రంలో మీరు చూస్తే అధ్యక్ష బడా కాంట్రాక్టర్లకు మాత్రం బిల్లులు వస్తున్నాయి, చిన్న కాంట్రాక్టర్లకు ఇప్పుడు ఒక సంవత్సర కాలం నుంచి 691 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వకుండా సర్పంచులను ఎంపీటీసీలను ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గోసబుచ్చుకుంటా ఉంది అధ్యక్ష। जिला निजामाबाद पेंशनर्स के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जात का जोश व खरोश के साथ इनेकाद किया गया। जिला निजामाबाद ऑल पेंशनर्स के ज़ेर एहतमाम बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मर्दों के लिए मल्लू स्वराज्यम ट्रस्ट भवन के पास और खवातीन को CSI चर्च कंपाउंड के पास 17 दिसंबर पेंशनर्स डे के मौके पर खेलों के मुकाबले जात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत बरोज इतवार को मुनक़िद होने वाले खेलों के मुकाबले जात का जिला सदर S दत्तात्रेय राव के हाथों आगाज अमल में लाया गया और मिर्ची कंपाउंड के पास खवातीन के लिए मुनक़िदा खेलों के मुकाबले जात का महकमे
में एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर लक्ष्मी नारायणा के हाथों आगाज अमल में लाया गया, जिसमें स्किल गेम्स होने वाले इंडियन टैग, बकेट एंड बॉल, वाटर कैन, पॉसिंग बॉल, लूडो, फास्ट वॉकिंग, चेस व दीगर मुकाबले जात का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाते हुए फातेहीन को ऐलान किया, जिसके तहत खवातीन में किरिस्तु कुमारी, स्वर्णा लता, पद्मा कुमारी ने कामयाबी हासिल की। होटल मैनेजमेंट कोर्स आने वाली नस्ल के लिए निहायत जरूरी होने का साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। जिला निजामाबाद के मराकज पर वाक़े गंगा स्थान फेज 1 में यूवी होटल मैनेजमेंट ऑफ कॉलेज का साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि चाइना जैसे बड़े मुमालिक में मुख्तलिफ कारोबारी ग्रुपों को अहमियत देते हुए होटलों को भी खुसूसी मुकाम की फराहमी अमल में लाने के बायस होटलों की अहमियत में भी इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि होटल मैनेजमेंट कोर्स मुकम्मिल करने वाले मुख्तलिफ मुमालिक के अलावा हमारे मुल्क में भी रास्त तौर पर होटलों का क़याम अमल में लाते जायकेदार ग़िज़ाओं के शौकीन को मुतासिर करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, डीसीसी सदर एम मोहन रेड्डी, साबिका ZP चेयरमैन दादन्ना गारी विठल राव व दीगर ने शिरकत की। ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా పనిచేసే విధంగా ఇక్కడ అన్ని అరేంజ్ చేసి టీచింగ్ చెప్పడానికి ఈరోజు మనందరితో కాలేజీలు ప్రారంభించాలి చేస్తున్నాం. నేనందరూ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు एरगटला व तुर्ती देहात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का कांग्रेस कायदीन ने रखा संगे बुनियाद। एरगटला व तुर्ती देहात में STF ग्रांट के तहत मंजूर होने वाले फंड से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखने का DCC जिला नायब सदर एच शिवा कुमार ने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गीता कार्मिका संगम मंदिर के पास अकीदतमंदों के लिए सहूलियात देने, टीन शेड के लिए 2,50,000 रुपये और जक्कानी मुदिराज संगम के पास CC ड्राइन के अलावा तुर्ती देहात में वाक़े मंदिर के साइड वॉल के लिए 10 लाख रुपये फंड की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एरगटला व तुर्ती देहात के कांग्रेस कायदीन कारकुनान के अलावा संगम के अराकीन ने शिरकत की। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नाज़रीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।